A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying the solution of English language का paper जो तुम लोग अभी अभी दे करके आए हो. And sorry for the background noise, some dog is there. So we'll be starting this paper from the part of this functional grammar only. वो उसी order में I will solve it जैसे मैं usually copies में solve करती थी. ठीक है, तो the first thing that here is given is the solution of मतलब one example is there. The heavy showers of rain revived the plants were revived by heavy showers of rain. ठीक है, फिर उसके बाद next is PG Woodhouse is the funniest author I have ever read. तो no other author I have ever read is as funny as P.G. Woodhouse. ठीक है, मतलब ये अगर आपका सुपरलेटिव है तो दिस हैज टू बी इन पॉजिटिव. देन नेक्स्ट इज मैकलेंग्लो was an architect and a poet. Not only was Michelangelo an architect, but also a poet, या फिर but he was also a poet. तो हम इसको सिर्फ but also a poet ही लिख रहे हैं. Both can be taken, but also a poet is also okay. Then Sarah said that she would come to my house the following day. Sarah said to me, I will come to your house. उसने मुझसे कहा वो मेरे घर आएगी, तो I will come to your house tomorrow. Okay, full stop, single inverted comma, double inverted commas, close. फिर as soon as the students enter their classroom, the teacher welcomes them. ये कौन से tense में है? Present tense में है, तो did नहीं लगेगा इसमें. Okay, तो it will be no sooner do the students. does क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये plural form में है. no sooner do the students enter देयर. ईडी भी नहीं लगेगा क्योंकि डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. नो सूनर डू द स्टूडेंट्स एंटर देयर क्लासरूम देन द टीचर, पूरा वो एज इट इज रहेगा, देन द टीचर वेलकम्स देम. ओके, नेक्स्ट इज ओनली द वेयरर नोज where the shoe pinches. None but only the wearer. या only भी नहीं लगेगा, none but the wearer. हाँ ठीक है, none but the wearer पहनने वाला knows where the shoe pinches. ठीक है, तो these were the transformation. Now we will move towards your favorite exercises, that is prepositions. तो first one is we must carry on, मतलब to continue some work is carry on despite the challenges we have come across. The police promised to carry out a thorough investigation. carry out मतलब होता है कुछ accomplish करना. फिर है he is sure to appeal फॉर द जजमेंट हो सकता था अगर ये फेवरेबल होता. ठीक है, तो अपील अगेंस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर अनफेवरेबल जजमेंट है, तो हम उसके खिलाफ दोबारा से अपील करेंगे. द लीडर अपील्ड टू द पब्लिक होगा. जब किसी पर्सन के लिए पर्सन को अपील करते हैं तो टू द पब्लिक होगा. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. द एक्सपीरियंस डॉक्टर फाउंड इट इजी टू डील विद यंग पेशेंट्स, उनके साथ डील करना. फिर दिस पर्टिकुलर शॉप डील्स इन ऑर्गेनिक फूड, मतलब कि वो किस चीज में बाय और सेल करती है, ऑर्गेनिक फूड को बाय और सेल करती है. द फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट जम्प्ड एट द फर्स्ट ऑफर ऑफ अ जॉब, मतलब जम्प्ड एट होता है टू ईगरली टेक, ये सब मैंने लिखा हुआ है मीनिंग के साथ. टू ईगरली टेक मतलब बहुत ही खुशी खुशी किसी चीज को पकड़ लेना जल्दी से. माई मदर एडवाइज्ड मी
नेवर टू जंप टू द कंक्लूजन्स, ठीक है, जंप एट द कंक्लूजन्स नहीं, जंप टू द कंक्लूजन्स. हेस्टी जजमेंट करना, बहुत जल्दी फैसला लेना ना, इज जंप टू द कंक्लूजन्स. द साइन बोर्ड इन द पार्क रेड कीप ऑफ द लॉन, दूर रहना लॉन से. इट इज नॉट इजी टू कीप अप विद, साथ साथ पेस बना करके चलना इज कीप अप विद द changing fashions. Okay, then next is the easier one, the mixed tenses exercise. सबसे पहले इसमें दिया हुआ है young man had a beautiful garden in his mansion. As he loved flowers, shrubs and trees, he tended to the garden himself. Next to his mansion there was a small house in which lived, past tense है, आप देख रहे होगे ये, ठीक है. ही हैड, ही लव्ड, तो ये पास्ट टेंस या फिर आईएनजी फॉर्म्स जा सकते हैं उसके. वन डे द यंग मैन वाज एक्सपेक्टिंग, आईएनजी ऑब्वियसली, was expecting some special guest. He took extra care in tending, ing मतलब caring to the garden. He pulled the weeds, trimmed, पास्ट टेंस में जब सब कुछ जा रहा है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट में ही जाएगा. He pulled the weeds, trimmed the shrubs, combed the moss and spent a long time meticulously raking up. एक वो होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ इक्विपमेंट होता है जिससे हम सफाई करते हैं ग्रास की, वही करना. Raking up and carefully arranging all the dry autumn leaves. As he worked, the old man watched him, या फिर was watching can also be considered. Watched him with interest from across the wall that separated their houses. When he had finished, the young man stood back to admire. इसमें कुछ भी फॉर्म नहीं लगे क्योंकि टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं. टू प्ले, टू गो, टू कम. stood back to admire his work. Isn't it beautiful? फिर यहाँ पे after a slight hesitation the young man, past tense again, lifted the old fellow over and set him down. और उसके बाद grabbed it by trunk and shook it. Leaves showered, या अगर were showered भी मुझे बताना अगर सही हो तो, but leaves were showered ही हो सकता है, I feel like, नहीं तो showered is okay. Leaves showered down over the garden and formed a beautiful carpet. Okay, now we will move towards the next one जिसमें comprehension दिया हुआ है. तो first one is comprehension में 3 words दिए हुए हैं कि 3 words. First one you have to tell, meaning दी हुई है again, इसके आपको words ढूंढने. तो first word is faces, that is known as countenances, ठीक है. walks purposely, that is strides. और next is precious, that is valuable. तो ये हमने क्या करना है, ये हम तुम लोग को भेज देंगे पीडीएफ, ठीक है. तो ये हमने यहीं पर ही एनसर्कल किया हुआ है इसको ऐसे करके ही. देन नेक्स्ट वन इज कि you have to choose a sentence that uses the same word unchanged in form but with a different meaning. So first one is the word that is in line number 7, that is row. It looks like a row, your honor, says a constable. मतलब there were some, what was happening there, there was some sort of quarrel going on. तो यहाँ पर जब when it is row here तो it will be ये दूसरे फॉर्म में यूज हुआ यहाँ पर, तो हम इसको दूसरे फॉर्म में किस में जाएगा, वी सैट इन अ रो एट द बैक ऑफ द रूम. तो फर्स्ट वन विल बी देयर. जब भी अगर कोई भी द रो हैज ब्रोकन अमंग्स द वेंडर्स, अगेन ये भी क्वेरल है. द फिशरमैन रोड, हम अगेन फॉर्म नहीं चेंज करेंगे, ठीक है. तो दिस विल बी द फर्स्ट वन एज इट इज. देन नेक्स्ट वन लेफ्ट, तो इसका लाइन 8 जिसमें दी हुई है, तो दे लेफ्ट द हाउस एट 6 o'clock मॉर्निंग टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम. ओके, तो हेयर मतलब जो यूज होगा इट विल बी दिस वन ओनली. एंड देन नेक्स्ट इज फैंसी. तो फैंसी के लिए कौन सा यूज होगा यहाँ पर, द अदर फॉर्म, दैट इज ही सेल्स पुअर goods but charges fancy prices, higher prices.
ओके, देन द क्वेश्चंस आर देयर. ये आई होप आप लोगों ने अपने आप ही उसको इन योर ओन वर्ड्स ये सॉल्व किया होगा. नेक्स्ट इज द प्रेसी पार्ट. प्रेसी पार्ट में भी 5 to 9 पैराग्राफ्स में से यू हैव टू टेक. तो ये यहां से यहां तक जाएगी आपकी प्रेसी एंड इट विल गो फ्रॉम हेयर. ठीक है, किया आप लोगों ने पढ़ के होगा, तो डोंट बी इन्वॉल्व सो मच इन द लैंग्वेज पेपर. ओके, जितना काम काम का था वो हो गया, क्योंकि मेन जो आपका मार्क्स जाने या नहीं जाने होते हैं वो फंक्शनल ग्रामर में ही होते हैं. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनली आपकी फिल्म रिव्यू, जिसके आप लोग सालों से 2 साल से वेट कर रहे थे, वो आ गई है. ठीक है, तो व्हाट थिंग्स आर देयर? नेम ऑफ द फिल्म एंड डायरेक्टर, एक्टर्स कौन थे, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या थी या उनके रोल्स क्या थे वहां पर. प्लॉट इज देयर, आप एक छोटे से उसमें मीनिंग उसका, सॉरी, व्हाट वाज दिस फिल्म ऑल अबाउट, ये आता है प्लॉट में. कहाँ सेट हुई है, उसकी सेटिंग, या कहीं पर यही नॉर्मल फिल्म सिटी में सेट हुई है, एनीवेयर आउटसाइड द कंट्री और योर ओन सिटी. फिर कोई ऐसा सीन दैट यू पर्टिकुलरली लाइक, आप कोई ऐसा छोटा इंसिडेंट बना बता सकते हो उसमें. फिर रेटिंग्स 5 out of 5 स्टार्स जैसे होते हैं, तो आई विल गिव द मूवी 3 stars out of 5. रिकमेंडेशन, आई वुड रिकमेंड दिस फिल्म टू एवरीवन एल्स, जो भी है वो देख लें जा करके. फिर आता है, एज अ मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ एबीसी स्कूल यू विश टू स्टार्ट अ लाफ्टर क्लब टू डेवलप अप्रिसिएशन फॉर ह्यूमर अमंग स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली लाइन में तो दिया ही हुआ है आपको कि व्हाट आर द हेडिंग या फिर टाइटल तो दिया ही हुआ है आपको. ठीक है, तो इट विल बी रिटन एज प्रपोजल टू स्टार्ट अ लाफ्टर, ठीक है, क्लब. और उसके बाद उसी में ही हेडिंग्स में यू कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट, यही वाला ही लिख सकते हो, टू डेवलप द अप्रिसिएशन फॉर ह्यूमर अमंग स्टूडेंट्स. फिर इसी में ही ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हो कि क्या उसका फायदा होगा. तो उसमें यू कैन राइट द स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड एज द club will have various activities that will reduce their stress and increase their positive attitude towards studies, towards life. It will bring them physical, emotional and mental, it will improve their physical, emotional and mental well-being. ऐसे करके आप उसमें लिख सकते हो, अगर लिखा हुआ है तो well and good, अच्छी बात है. ओके तो फिर उसके बाद ये कुछ आते हैं, ये इसमें से ये म्यूजिक तो आई गेस रिपीटेड है, ये आई हैव सीन दिस अर्लियर आल्सो. ओके, उसके बाद था, रिसेंटली यू हैव अटेंडेड द वेडिंग ऑफ अ क्लोज रिलेटिव. इट वाज द फर्स्ट फैमिली गैदरिंग आफ्टर पेंडेमिक, और आपको एक्साइटमेंट बताना है फैमिली मेंबर्स से मिलने का. वेन्यू, फूड दैट वाज सर्व्ड, सेलिब्रेशंस दैट वाज फॉलोड. तो ये सारे पार्ट्स आपको अलग अलग एक एक करके, लाइक एक्साइटमेंट 1, वेन्यू 2, आपको डिस्क्राइब करना है. सुंदर था, बड़ा था, छोटा था वेन्यू, फूड कैसा था, क्या था उसमें, और सेलिब्रेशंस में क्या क्या चीजें थी. तो ये 4 हिस्से, 4 अलग अलग पैराग्राफ्स में जाना इज नेसेसरी. Then cooking should be made compulsory subject in higher classes. Yes, of course, cooking is a basic life skill. तो हम बिल्कुल श्योरली चाहते हैं कि ये भले ही वो नॉन फ्लेम कुकिंग हो, ये नहीं है कि अगेंस्ट में लिख करके चले आओगे, नहीं नहीं खाना नहीं बनाएंगे हम लोग, बच्चे हम लोग, हाथ जल जाएगा हम लोगों का. तो see, you can write it anyway, either can be for or against. Then next one, during the summer break, you have joined a group of young people who read to the elderly at senior citizens home. Narrate your experience of reading to the elderly and interactions you had with them. How did this experience impact you? तो ये भी आप लिख सकते हो कि कोई होम में आप गए थे, वहां पर सीनियर सिटीजन होम में, और वहां पर यू यूज टू रीड फॉर द ओल्ड पीपल, और उनसे आपके कितने अच्छे अच्छे इंटरेक्शंस होते थे, वो आपको कोई कहानी बताते थे या उनके कोई एक्सपीरियंस जो आपको पता हो, और ये सारी चीजों से आपको कैसा इम्पैक्ट हुआ, हाउ यू लाइक्ड द वे यू वर डूइंग दीज थिंग्स. फिर अ पर्सन शुड बी जज्ड बाय द वे दे ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स.
A person should be judged by the way they treat their subordinates. Present your reflections on this statement. तो इसमें आपको यही एक पहले तो डिस्क्राइब कर सकते हो उसको कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स सुपीरियर से तो एवरीवन इज वेरी नाइस, एवरीवन इज अ यस पर्सन, क्योंकि हमको पता है कि हमको उनसे फायदा है, या तो हम उनसे कुछ सीखेंगे या तो हमको उनसे सैलरी पैसा कुछ तो मिलेगा। और सबॉर्डिनेट्स जिनसे हमें कुछ नहीं मिलना होता है, हमें सिर्फ उनको सिखाना होता है। हाउ नाइसली वी ट्रीट देम और हाउ बैडली वी ट्रीट देम शोज आवर पर्सनालिटी टुवर्ड्स देम। तो ये इसमें आपको मेंशन करना है। आप इसमें कोई छोटा सा एग्जाम्पल रिएक्शन दे सकते हो। वो कौन सी मूवी थी जिसमें देयर वाज वन पर्सन जो वेटर को ऐसे ऐसे करके बुलाता था और उसी के बेसिस पे उसको जज किया गया था। ओके, फिर उसके बाद लास्ट इज शी वाज स्टिल ऑन द फोन गिविंग आउट इंस्ट्रक्शंस व्हेन। तो ये स्टोरी है जिसको आपको इसी से ही स्टार्ट करना था। आई होप कि किसी ने ये जरूर अटेम्प्ट किया होगा। टेल मी इफ यू हैव। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर part of language paper. Concentrate now on literature. Tell me what things you need to have for literature. Literature में वैसे हमने आपको कुछ links भेज दिए on Telegram regarding the themes that I told you to provide you. Rest whatever you need, just let me know and I will surely provide you by today or before tomorrow 12. ठीक है? Thank you. Keep preparing for your exams. Best wishes.